wasting any time. So today we will be going to start a new topic, and that is called lithography. So what lithography means? Litho means stone. So graph means printing. So it is being taken from there कि आप स्टोन को यूज करके, जैसे आपने देखा होगा क्लोथ्स के ऊपर प्रिंटिंग होती है कि आप एक पैटर्न लेते हैं और उसको क्लोथ के ऊपर प्रिंट कर लेते हैं, तो इस तरीके से इसको वहां से derive किया गया. Although it is little bit different from that in many contexts, but still the basic name remains the same. So today we are going to discuss about this. So let's have an introduction about lithography. So in lithography, because we are actually using light in general, so we can say that we will be talking about photolithography rather. Photolithography. So we are not working with lithography alone, we are working with photolithography. So what is photolithography? Photolithography is basically a process of transferring, it is a process of transferring patterns of various geometric shapes on a mask to a thin layer of photoresistive material called photoresist. Photosensitive. This is called this is photosensitive. Sensitive material called photoresist. So this is the general thing. So it is a process of transferring patterns of various geometric shapes on a mask to a thin layer of photosensitive material called photoresist, which covers the surface of a semiconductor वेफर. तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आइडिया भी ले चुके हैं पहले कि होता क्या है ये, कि बेसिकली आपके पास जैसे सपोज एक वेफर है, आप क्या करते हैं उसके ऊपर फोटोरेसिस्ट अप्लाई कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट यू एक्सपोज, यू हैव ए मास्क, और मास्क से जब उसको लाइट से एक्सपोज करते हैं तो कुछ पोर्शन एक्सपोज हो जाता है. जैसे सपोज ये है तो ये पोर्शन अनएक्सपोज रह जाएगा. तो जो पोर्शन एक्सपोज हो जाता है उसका बॉन्ड स्ट्रांग बन जाता है और बाकी का वीक रह जाता है. तो जो वो वीक रह जाता है उसको आप इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सम सॉल्वेंट. तो इस तरीके से आप कोई भी पैटर्न ऑब्टेन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ये एक जनरल प्रोसेस है. और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? इसका यूज होता है आईसी फैब्रिकेशन में, और आईसी फैब्रिकेशन में जैसे सपोज आपको इम्प्लांट रीजन्स बनाने हैं, या फिर आपको कॉन्टैक्ट विंडोज बनाने हैं, या फिर जैसे सपोज ये आपका आईसी है,
इससे एक्सटर्नल वर्ल्ड को जो कनेक्शन देते हैं उसको कहते हैं बॉन्डिंग पैड, या फिर आपको बॉन्डिंग पैड्स बनाने हैं। तो ये सब के लिए आप क्या करेंगे, आप फोटोलिथोग्राफी का यूज़ करते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है फोटो रेजिस्ट, वो हम थोड़े टाइम बाद करेंगे। पहले एक बार फोटोलिथोग्राफी पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो इस टॉपिक में और भी बहुत कुछ है, और इससे आपको एक और आंसर मिलेगा जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे। क्या आंसर मिलेगा कि जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि स्केलिंग हो रही है डे बाय डे, तो स्केलिंग हम क्यों नहीं कर सकते ज़्यादा? वाई वी कैन नॉट गो स्केलिंग बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, scaling beyond a certain limit. So when we will complete this discussion, the answer will definitely come to you automatically. So let's have some brief idea about what we are going to do and how we are going to do this particular topic. So before we go ahead, please recall something called clean room. Although we have covered is when we start the process. What is clean room? So clean room, you know that it is a IC fabrication facility, and we do it in a clean processing room. Now, clean does not mean that you are brooming and mopping your floor and that becomes clean. No, it is being done with a particular kind of what we can say blowers, vacuum cleaners, and then HEPA filters are required, high energy purification air filters, so that no dust is there, because any dust particle can be prominent. And if a small dust particle is, suppose this is your mask, and on this you are having a small dust particle, when light falls on it, that is being unexposed, and in accordance to that, that will be developed onto your wafer. So that's the problem. So we will be discussing about that in the coming slides. Some, not much, because we have already covered this topic, and those who don't know much about this can view the video that is itself in the playlist, that is clean room. You will get a fair idea about clean room in that video. So this is a general description about your various particles which can be on the mask. So here you can see you are having dust particles 1, 2, and 3. So one is pinhole, second is current constriction. Here you can see constriction. Third is short circuit or open circuit. Anything can happen with this kind of particle. So particle may one result in the formation of a pinhole, yes, because this is actually protecting, and this will not be developed, and a hole is being created into the wafer. Particle 2 is located near the edge, and it may cause constriction of the current flow in a metal runner. And third is actually touching this. So if this is being developed, if it is a metal, it may create a short circuit between the two conducting regions and make your circuit to be useless. So these are the different things that might happen when you actually expose your system to dust particles. So this lies that your clean room is how much important. Now, this is just a description about your clean room. Although we have covered this, so this is a graph, and here you can see that what actually defines the clean room. So clean room is actually being defined as the total number of dust particles per unit volume.
So it is to be controlled along with your temperature and humidity. So these are the very important things. So you can see the distribution given in this particular graph. So on your x-axis, you will find out the particle size in micrometer, and on y-axis, you will have total particles per meter cube. So here you can see two kind of systems will be there. One is English system. So in English system, the numerical designation of the class is taken from the maximum level number of particles. So that is being your 0.5 micrometer. So this is for English system. And in metric system, there is one more system that is called metric system. So in metric system, you will have a log of this particles that are 0.5 micrometer and per cubic meter. So when suppose you say that you are working in a class 100 clean room. So what does it signifies? It says that 100 particles per feet per cubic feet, and their diameter is around 0.5 micrometer or larger. And when you talk about class 3.5, so it means it has a dust count of 10 to 3.5. That means 3500 particles per meter cube. And M3.5, it is being written as M3.5 system. So the important thing as far as this particular clean room is being concerned is that number of particles increases as particle size decreases. So here you can see from the graph, suppose you are working with class 1, and if you say that you are looking for 0.1 micrometer, so that means they are 10 raised to power 3. On the contrary, if you are looking around 0.5 micrometer, so their number decreases. So that is important as far as clean room is being concerned. And how it is being done, that is a different issue. You can look for it, some video, and one video I have already posted on clean room. So that gives you complete information on clean room. And also I have shared the PDFs with you. So from there, you can actually look for other things. Now, your photolithography is to be discussed. And the first requirement we have started to discuss is that your clean room environment. That means everything is to being done in clean room. So if this is being met, the next thing that is important is exposure tools. That means how you are actually going to expose the things. Suppose you are having a mask and this is your wafer and you are using light. So how actually it is being done. So that is very important. So there are certain parameters that need to be discussed. तो सबसे पहला पैरामीटर जो है जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन. और रेजोल्यूशन क्या होता है कि मिनिमम फीचर डायमेंशन मिनिमम फीचर डायमेंशन that can transfer with high fidelity to a resist film on a semiconductor
वेफर। तो आप क्या करते हैं फोटोलिथोग्राफी में, आपके पास वेफर होता है, उसके ऊपर आप फोटो रेजिस्ट अप्लाई करते हैं। अब क्या है, रेजोल्यूशन क्या है कि कितनी एक्यूरेटली, अब फिडेलिटी होता है कि जैसे ये है एक पर्टिकुलर पैटर्न, उसको आप एज इट इज ही उस पर ट्रांसफर कर सकें, दैट इज कॉल्ड फिडेलिटी, रिप्रोड्यूस कर सकें उसको एज इट इज। तो ये है कि मिनिमम कितना कर सकते हैं आप, 1 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, सो दैट इज रेजोल्यूशन। सेकेंड थिंग इज दैट पैरामीटर्स, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या है? सो इट इज ए मेजर of how accurately patterns on successive masks can be aligned with respect to previously defined patterns on the wafer। कि जैसे सपोज आपने एक बना लिया पैटर्न, अब आपने सेकंड बनाना है, तो जो प्रीवियसली पैटर्न है उनके रिस्पेक्ट में आप ये डालेंगे तो उनको प्रॉब्लम ना हो, तो ये भी बड़े आराम से होना चाहिए। तो इसको कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन। ये एक पैटर्न हो गया, उसका सेकंड करना है, थर्ड करना है, तो हाउ एक्यूरेटली आप उसको कर रहे हैं, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट इशू। लास्ट इज थ्रूपुट। इट इज द नंबर ऑफ वेफर्स, it is the number of wafers that can be exposed per hour for a given mask level। तो कितने वेफर्स आप एक्सपोज कर सकते हैं पर आवर उस मास्क लेवल के लिए, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। अब ये तो हो गया हमारा एक्सपोजर टूल्स से रिलेटेड उसके पैरामीटर्स। सो व्हाट दे आर पैरामीटर्स। तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? एक तो रेजोल्यूशन है कि आप मिनिमम फीचर कितना कर सकते हैं उस पर ट्रांसफर। सेकंड है कि आप पैटर्न बाय पैटर्न कितने एक्यूरेटली कर सकते हैं। थर्ड इज थ्रू आउटपुट, कितना कर सकते हैं, हाउ मेनी ट्रांसफर्स इन ए गिवन आर। अब इसके बाद आ जाता है एक्सपोजर मेथड्स। एक्सपोजर मेथड्स कि आपने एक्सपोज करना है कि उसको, जैसे ये लाइट है और ये आपका मास्क है, सो दिस इज योर लाइट विच यू आर यूजिंग, और ये आपका मास्क है और ये आपका वेफर है, इसके ऊपर फोटो रेजिस्ट आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप इसको एक्सपोज भी तो करेंगे ना लाइट से। तो which technique you are actually using, which method you are actually using, so let's discuss them one by one. The first method which we are actually using is contact printing, that is called contact printing। इसमें आप देख सकते हैं ये मास्क है और इसके बीच में ये फोटो रेजिस्ट है, ये सबस्ट्रेट है, और ये लेंस है जिसके ऊपर आपने वो पैटर्न बनाया हुआ है, और इसके थ्रू आप लाइट को फोकस कर रहे हैं, और मास्क के थ्रू वो जो जो एक्सपोज होना हो जाएगा, जो बाकी है वो रह जाएगा।
तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो आपकी शैडो प्रिंटिंग है, बेसिकली ये दो टाइप की होती है। वन इज कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग, बेसिकली दिस इज ए subsection of shadow printing. So one is contact printing and second is proximity printing. Proximity means काफी क्लोज है लेकिन टच नहीं करेगा, लेकिन कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग में बिल्कुल वो कॉन्टैक्ट बन जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके दो टाइप्स हैं। तो अगर आप इस फिगर में देखें, जैसे मैंने डिस्कस किया कि इसमें बेसिक सेटअप ऑफ कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग इज बीइंग डिस्कस्ड, in which a resist coated wafer is brought into फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द मास्क। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट लेकर आए हैं और रेजिस्ट को हम एक्सपोज कर देते हैं बाय नियरली कॉलिमेटेड बीम ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो ये जो लाइट है ये नॉर्मल लाइट नहीं है, इट इज कॉलिमेटेड बीम ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो ये मास्क की बैक साइड से एंटर करती है और फिक्स टाइम के लिए करते हैं। तो जो इंटीमेट कांटेक्ट है, रेजिस्ट और मास्क के बीच में जो है ये अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आपको दिख रहा होगा स्पेस है, ये 1 माइक्रोमीटर है। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग की, कि जो आपका डस्ट पार्टिकल्स हैं, योर सिस्टम इज प्रोन टू डस्ट पार्टिकल्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आपका मास्क है वो उसके साथ कांटेक्ट बना लेता है। तो इसकी वजह से आपकी परमानेंट डैमेज हो सकती है और वेफर टू वेफर ये डैमेज बढ़ती जा सकती है। और ये डस्ट का जो सोर्स है वो सिलिकॉन है। ये सिलिकॉन में आपको पता थोड़ी बहुत डस्ट तो रह ही जाती है, स्पेक ऑफ सिलिकॉन, तो इसलिए इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो सिलिकॉन के अंदर अगर कोई डस्ट है, तो स्पेक ऑफ सिलिकॉन डस्ट है, दैट में कॉज द प्रॉब्लम। तो इसको ध्यान में रखा जाता है। इसलिए जो आपका जितना भी आईसी फैब्रिकेशन का जो काम है ये बड़े ही अच्छे इन्वायरमेंट में किया जाता है ताकि आपको ये सब प्रॉब्लम्स ना आए। नाउ सेकंड काइंड ऑफ शैडो प्रिंटिंग इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग। इसमें आपको दिख रहा है कि क्लोज तो है बट दे आर नॉट हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। प्रॉक्सिमिटी ये हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मास्क जब कांटेक्ट कर रहा था इस वाले केस में, तो डस्ट इसके साथ स्टिक कर जा रही थी और वो फिर आगे टू मास्क वेरी करती जा रही है। और आप जब बात करते हैं फिडेलिटी की, सेम स्ट्रक्चर इज टू बी रिप्रोड्यूस्ड, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए फिर ये प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग यूज की जाती है। तो ये जो फिगर दिख रहा है इसमें आपको, ये है प्रॉक्सिमिटी एक्सपोजर मेथड। इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ा बेसिक सेटअप है, ये कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग जैसा ही है। लेकिन जो गैप है यहाँ पे, ये जो गैप है ये है आपका 10 माइक्रोमीटर से लेके 50 माइक्रोमीटर तक का, और इसको जी से डिनोट करते हैं। अगर हम गैप को स्मॉल करेंगे तो उसकी वजह से जो है ऑप्टिकल फिनोमेना आता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल डिफ्रैक्शन। तो ये क्या होता है, आपको डिफ्रैक्शन मालूम है कि जैसे एजेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो लाइट जब पास करती है एजेस पे ओपेक मास्क के, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो फ्रिंजेस फॉर्म होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका शेडो रीजन है उसके अंदर भी आपकी लाइट एंटर कर जाती है। तो उसकी वजह से जो आपका रेजोल्यूशन है वो थोड़ा कम हो जाता है। रेजोल्यूशन जो है आपका 2 to 5 माइक्रोमीटर जो है डिग्रेड हो जाता है। तो दैट इज अगेन ए प्रॉब्लम इस रेंज में। तो अगर हम शैडो प्रिंटिंग की बात करें या इसकी बात करें, तो मिनिमम लाइन विड्थ की मिनिमम
लाइन विड्थ, तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि क्रिटिकल डायमेंशन PD that can be printed, उस पर ट्रांसफर कर दें। तो ये इसको क्रिटिकल डायमेंशन है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू जी अंडर रूट ऑफ लैम्डा जी, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द एक्सपोजर रेडिएशन, जो रेडिएशन यूज कर रहे हैं its wavelength is called lambda. Lambda is equal to wavelength of the exposure radiation, or G, you know, the gap between the mask and the wafer, and includes the thickness of the resist. Yes, this needs to be taken care of, that G is actually thickness, or we can say gap between your mask and wafer with thickness of photoresist included, photoresist included, तो इसको इंक्लूड किया गया है इसमें। तो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर लैम्डा 0.4 है, G50 है, तो क्रिटिकल डायमेंशन जो है वो 4.5 है। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये आपकी जो अभी स्टडी किया, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, वो ये है कि फॉर ए गिवन डिस्टेंस G, अगर कोई डायमीटर वाला डस्ट पार्टिकल आता है, उसका जो डायमीटर है वो G से ज़्यादा है, तो क्या होगा, मास्क को डैमेज कर सकता है, मास्क कैन बी डैमेज। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लीन रूम में हो और मास्क को बचाया जाए। तो इसमें प्रॉब्लम्स आपने क्या क्या देखी, ये जो हमने किया था कि ये न्यूमेरिकल है इसमें कि अगर D.4 है तो क्रिटिकल डायमेंशन G50 है, तो क्रिटिकल डायमेंशन कितना आएगा, इस तरीके का। ठीक है, अब शैडो प्रिंटिंग की हम बात करें, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए नेक्स्ट काइंड ऑफ थिंग दैट इज बीइंग डेवलप्ड इज कॉल्ड प्रोजेक्शन प्रिंटिंग। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी, प्रोजेक्शन प्रिंटिंग के बारे में। तो प्रोजेक्शन प्रिंटिंग में क्या होता है कि हम एक्चुअली क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ द मास्क patterns onto a resist coated wafer many centimeter away from the mask. So बेसिकली इसका आइडिया है कि लाइट है, लाइट सोर्स है, और यहाँ पे आपने सिस्टम रखा हुआ है और यहाँ पे आपका वेफर रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, इसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम थी डस्ट की, लेकिन इसमें प्रॉब्लम रेजोल्यूशन की आ जाती है, क्योंकि इतने दूर से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि
स्मॉल पोर्शन ही किया जाता है, स्मॉल पोर्शन एक्सपोज्ड एट ए एक टाइम पे स्मॉल पोर्शन ही एक्सपोज किया जाता है। तो इसमें क्या है कि स्मॉल इमेज को स्कैन किया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बेसिकली प्रोजेक्शन सिस्टम। ये आपका लाइट सोर्स है 248 टू 193 नैनोमीटर का है, और यहाँ पे आपका मास्क है, इसको फोकस किया गया है। उसके बाद मास्क के थ्रू आपने क्या किया, ये आपका वेफर है इस पे है, और इसको फर्दर कन्वर्ज किया गया, और आप एक एरिया वाइज एरिया इस पे आप करते हैं। ये नहीं कि आपने सारा एक बार में कर दिया वन एट अ टाइम, स्मॉल एंड स्मॉलर आप छोटा छोटा स्कैन करके इसको करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अभी। तो इसमें अलग अलग तरीके से प्रोजेक्शन होती है। तो इसमें सबसे पहले ए है एनुअल फील्ड वेफर स्कैन। तो इसमें देखेंगे कि 1:1 एक्चुअली, कि ये आपने एक नैरो आर्क शेप्ड इमेज फील्ड 1 मिलीमीटर विड्थ जो है वो उसको लिया आपने, और उसको मास्क को वेफर के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे एक आर्क लिया, उसको आपने इस पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो इमेज यहाँ पे है आपके वेफर पे है वही मास्क के ऊपर होगी। तो ये इसका फिगर ए का है कि आपने एक आर्क सेलेक्ट करी और उसको आपने कर दिया। अब बी है 1:1 स्टेप एंड रिपीट। इसमें क्या करते हैं आप, एक छोटा सा पोर्शन सेलेक्ट करते हैं, जैसे इसमें सेलेक्ट किया उसको आपने स्कैन कर दिया, उसके बाद फिर सेकंड पोर्शन उठाते हैं, फिर उसको स्कैन करते हैं, और उसके बाद जो आप नेक्स्ट पोर्शन करते हैं वो है स्टेप एंड रिपीट, रिडक्शन स्टेप एंड रिपीट। इसमें आप क्या करते हैं कि एक स्टेप को लेते हैं, उसके बाद रिपीट कर देते हैं, रिड्यूस करते जाते हैं धीरे धीरे धीरे। तो इस तरीके से आप पूरे उसको कन्वर्ज करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज M1 रिडक्शन स्टेप एंड स्कैन। इसमें क्या करेंगे, एक को करेंगे स्कैन करके, फिर दूसरे को स्कैन करेंगे, इस तरीके से, तो वन एट अ टाइम। तो इस तरीके से आप इसको करते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है रेजोल्यूशन ऑफ ए प्रोजेक्शन सिस्टम, कि आप जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, कैसे कर रहे हैं। तो जो रेजोल्यूशन जो होता है वो गिवन बाय LM होता है, और K1 लैम्डा बाय NA। इनके तो ये तो रेजोल्यूशन हो गया। लैम्डा है आपका कि जिससे आप एक्सपोजर कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ, और K1 है प्रोसेस डिपेंडेंट फैक्टर है कि कौन सा प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज NA, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर, कि जो आप यूज़ कर रहे हैं लेंस उसका न्यूमेरिकल अपर्चर नहीं। न्यूमेरिकल अपर्चर इज बीइंग गिवन बाय NA is equal to underscore N this sin theta। सो N बार क्या है, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, मीडियम का, जो मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। थीटा जो है वो हाफ एंगल कोण है, जो लाइट बन रही है इसका जो हाफ एंगल कोण है वो थीटा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और इसके बाद एक फैक्टर और आता है, दैट इज कॉल्ड DOF, डेप्थ ऑफ फोकस। इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया कि लिथोग्राफी क्या है और इसको आप कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने थोड़ा सा क्लीन रूम का आइडिया लिया कि क्लीन रूम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है जब लिथोग्राफी की बात आती है। एंड आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट डिफरेंट pattern transfer techniques. In that we discussed about your shadow printing, and in shadow we have two types, your proximity and contact printing. In the last we were talking about projection printing। तो इसमें कुछ डिस्कस किया है, बाकी कुछ और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीक। और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।